Hello everyone. Next topic is torque slip characteristics. Torque slip characteristics of three-phase induction motor. Now we will discuss torque slip characteristics of three-phase induction motor. Okay, as we know that the torque developed by the three-phase induction motor tau is equal to Ks R2 E2 square upon R2 square plus S square X2 square. Okay, this is the expression for developed torque in case of three-phase induction motor, where S is the slip, R2 is the rotor resistance per phase, E2 is the induced EMF in the rotor circuit per phase, X2 is the leakage reactance in the rotor circuit per phase. Okay, now case first, when NR is equal to NS, इसका मतलब है कि जब रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के एग्जैक्टली इक्वल होगा तब उस टाइम पर स्लिप होगा 0. ठीक है, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन से दैट देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू 0, क्योंकि टॉर्क प्रोपोर्शनल टू स्लिप है. स्लिप 0 होने से टॉर्क 0 हो जाएगा. ओके, सेकेंड केस, व्हेन NR इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू NS, इसका मतलब है रोटर स्पीड इज नियर टू सिंक्रोनस स्पीड NS. इस टाइम पर जो आपका स्लिप होगा दैट विल बी वेरी लो. ओके, स्लिप विल बी वेरी low. Okay, so from here torque is equal to Ks R2 E2 square upon R2 square plus S square X2 square. Okay, since slip is very low, therefore S square is also very low. That's why it can be neglected. ओके, एस स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा, बहुत कम होगा एज कंपेयर टू R2 स्क्वायर. ओके, therefore torque tau is equal to Ks R2 E2 square upon R2 square. S square X2 square is neglected. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि टॉर्क, क्योंकि K भी कांस्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, ये भी कांस्टेंट है, तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप. तो यानी फॉर लोअर स्लिप्स टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप. एज द स्लिप इंक्रीजेस टॉर्क इंक्रीजेस. थर्ड केस में स्लिप को हम बढ़ाते जा रहे हैं. एज द स्लिप इंक्रीजेस टॉर्क इंक्रीजेस एंड reaches its maximum value. And reaches its maximum value. Okay, maximum value. This maximum torque
is also called breakdown torque or pull out टॉर्क। ठीक है, और जो इसके कोरस्पॉन्डिंग स्लिप होती है, द कोरस्पॉन्डिंग स्लिप is called breakdown slip। That is SM। जो मैक्सिमम टॉर्क के कोरस्पॉन्डिंग स्लिप होगी दैट विल बी मैक्सिमम कोरस्पॉन्डिंग स्लिप इज कॉल्ड ब्रेकडाउन स्लिप। ओके, नाउ फोर्थ केस, व्हेन NR इज नियर अबाउट 0। ओके, मतलब रोटर इज एट स्टैंड स्टिल। ओके, इस केस में जो स्लिप होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। ओके, तो फॉर स्लिप इज इक्वल टू 1, द टॉर्क टाउ इज इक्वल टू KS R2 E2 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X2 स्क्वायर। For slip 1, this factor cannot be neglected as compared to S square X2 square. R2 square is very low, that's why in this case R2 square can be neglected. Therefore, torque is equal to KS R2 E2 square upon S square X2 square. So from here एक S से आपका एक S कैंसिल हो जाएगा और we can say that torque is proportional to 1 upon S. So there are 4 cases. In first case torque is 0. Second case torque is proportional to slip. In third case, as the slip increases, torque also increases and reaches its maximum value. That maximum value is called maximum torque, breakdown torque or pull out torque. The corresponding slip is called breakdown slip. Okay. Fourth case is when slip is near to 1. In that case, torque is proportional to 1 upon S. Okay. So from these 4 conditions, now we draw the torque, speed or torque slip characteristics of 3-phase induction motor. Okay, let's move to the next page. Okay, now we will draw the torque slip characteristics of 3-phase induction motor. Okay, this is the torque axis and this is the speed or slip axis. Torque tau, speed एंड स्लिप। स्पीड आपका इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा तो स्लिप इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, क्योंकि एज द स्पीड इंक्रीजेस स्लिप डिक्रीजेस। ओके, अब यहाँ पर देखिए, सपोज यहाँ पर जो आपका सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल स्पीड है तो NR इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर NS, तो इस केस में स्लिप कितना है 0। ओके, नाउ यहाँ पर NR इज इक्वल टू कितना है 0 और इस केस में स्लिप कितना है 1। तो यानी आपका जो स्पीड है इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, 0 से NS जा रहा है, और स्लिप 0 से 1 इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। दैट्स वाई दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स और टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, नाउ व्हेन स्लिप इज 0 torque is 0. Okay, torque is 0
as the slip increases, torque increases linearly. As the slip increases, torque increases. Further, इसके बाद अगर स्लिप को आप और इंक्रीज करेंगे तो टॉर्क बढ़ते जाएगा. ओके, टॉर्क इंक्रीज होते जाएगा और वो एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा. ओके, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गया, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गया. और इसके बाद फर्दर अगर आप टॉर्क को इंक्रीज, स्लिप को इंक्रीज करोगे तो टॉर्क आपका डिक्रीज होते जाएगा और आपका एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, स्लिप 1 पर आपका टॉर्क इतना टॉर्क होगा. ओके, तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंगल 3 फेज इंडक्शन मोटर. ओके, दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क और ब्रेकडाउन टॉर्क. This is the tau max and the corresponding slip is called Sm. Okay. सपोज इस केस के लिए जो रोटर का रेजिस्टेंस था वो R2 था, क्योंकि हमें पता है वाउंड रोटर के केस में हम रोटर के रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं. तो इस केस में रोटर का रेजिस्टेंस जो था R2 था. इसके बाद एज द रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, ओके, यानी जो आपका R2 है, अगर आपने रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया और बढ़ा के उसको R2 डैश कर दिया तो टॉर्क और स्लिप कैरेक्टरिस्टिक देखिए कैसा होगा. आपका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो उसका जो मैक्सिमम पॉइंट है वो शिफ्ट कर जाएगा. ओके, इस तरह से मैं करता हूँ. उसका जो मैक्सिमम पॉइंट है वो शिफ्ट कर जाएगा और कोरस्पॉन्डिंग स्लिप यानी कोरस्पॉन्डिंग स्पीड भी शिफ्ट कर जाएगा. ओके, इसके लिए जो रेजिस्टेंस है रोटर का वो R2 डैश है. फर्दर अगर आप रोटर रेजिस्टेंस को, ये हमने गलत बना दिया, R2 डैश इज ग्रेटर देन, R2 डैश इज ग्रेटर देन R2 और ग्रेटर देन R2 डबल डैश. अब फर्दर अगर आप रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ा के R2 डैश कर देते हो तब आपका कैरेक्टरिस्टिक कैसा हो जाएगा, देखिए, तब आपका मैक्सिमम टॉर्क स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा और कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा आपका ऐसा. ठीक है, तो इस केस के लिए रोटर का रेजिस्टेंस आपने कितना कर दिया, R2 डबल डैश. ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट टॉर्क, स्लिप और टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 3 फेज इंडक्शन मोटर with variable rotor resistance, with different rotor resistance. Okay, so this is the figure. Torque, speed or torque slip characteristics of 3 फेज इंडक्शन मोटर. ओके, तो रोटर के रेजिस्टेंस को वेरी करके हम इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो पर्टिकुलर स्पीड पर या पर्टिकुलर स्लिप पर हम ऑब्टेन कर सकते हैं. ठीक है, जिस स्पीड पे या जिस स्लिप पे हमें मैक्सिमम टॉर्क चाहिए, बाय वेरिंग द रोटर रेजिस्टेंस वी कैन गेट द maximum torque at any desired slip. Okay, so this is the torque, speed or torque slip characteristics of 3 phase induction motor. This is the tau max. एक पॉइंट आपको यहाँ पे नोट करना पड़ेगा, जो मैक्सिमम टॉर्क है, मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू चेंज नहीं होता है. ठीक है, सिर्फ मैक्सिमम टॉर्क की पोजीशन चेंज होती है, Sm डैश. ठीक है, और यहाँ पर Sm डबल डैश हो जाएगा. तो मैक्सिमम टॉर्क की पोजीशन चेंज होती है, ना कि मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू. ओके, तो इसमें 1-2 पॉइंट है वो लिख लीजिए आप. पहला पॉइंट है, बाय वेरिंग द रोटर सर्किट रेजिस्टेंस
by varying the rotor circuit resistance, जो सिर्फ पॉसिबल है वाउंड रोटर में, विच इज पॉसिबल विद वाउंड रोटर। ओके, इस केस में मैक्सिमम टॉर्क कैन बी obtained at any desired slip or speed। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज क्लियर दैट variation of rotor resistance R2 does not change the maximum torque। okay, tau max। okay, so this is the torque slip characteristics of three phase induction motor with variable rotor resistance। for different rotor resistances there we can get the maximum torque at any desired slip, but the value of maximum torque cannot be changed। okay, thank you।